Hello students, welcome to SKD Coaching Center. I am Shilpa ma'am with you all. Today in this video, we are going to discuss MCQs of finance from lesson number 1 and 2. This video will be a game changer for those who want to get good marks in their upcoming exam. As we know, our Assam State School Education Board exam will going to happen in early March, so we have to prepare ourselves to the best. And as we know, in class 11 out of 80 you will be given 40 MCQs. So if you can score this 40 marks, your good marks is guaranteed. So let's begin. This video is different from other video. How? Because in this video you will be getting questions in two languages, that is English and Assamese. So those who are writing their answers in English and Assamese, they both are benefited with this video. So before starting, share with your friends. So our first question is from unit number 1. So finance mainly deals with option number 1, production of goods, B, distribution of goods, management of money, and the last, consumption of goods. As we know, finance is about managing the money, is about art and science of managing the money. So the right answer will be management of money. This is our answer. অসমীয়াটো দিয়া আছে বিত্ত মূলত কিহৰ হৈতে সম্পৰ্কিত সামগ্ৰীৰ উৎপাদন সামগ্ৰীৰ বিতৰণ ধনৰ ব্যৱস্থাপনা আৰু সামগ্ৰীৰ উপভোগ আমি জানো ফাইনান্স টু যেটো আছে আমাৰ ফাইনান্স টু লাইফ ব্লাড অফ বিজনেস এন্ড ইট ইজ দ্য আর্ট এন্ড সায়েন্স অফ ম্যানেজিং দ্য মানি সো আমাৰ কারেক্ট আনসার হ'ব ধনৰ ব্যৱস্থাপনা okay let's move to the next question the following is a source of long term finance তলৰ কোনটো দীৰ্ঘমেয়াদী বিত্তৰ উৎস আমি জানো ফাইনান্সৰ মিডিয়াম আৰু ফাইনান্সৰ সোর্স তিনিটা ৰকমৰ হ'ব পাৰে ফার্স্ট লং টার্ম শর্ট টার্ম and also medium term. So here you are asked to identify which is long term source of finance. An option is given: bank overdraft, trade credit, equity share and cash credit. So out of this the correct answer is option number C, equity share. Option number C, equity share. Equity, so that is going to be a long term source of fund. Okay, our next question is which of the following is not a function of finance? তলৰ কোনটো বিত্তৰ কাৰ্য নহয় Option A, investment decision. Option B, financing decision. Option C, dividend decision. And option D, marketing decision. বিনিয়োগৰ সিদ্ধান্ত, বিত্তীয় সিদ্ধান্ত, লাভাংশ সিদ্ধান্ত আৰু বিপণন সিদ্ধান্ত. So we know कि there are 3 financial decisions we have to take. First, financing decision कि कहाँ से हम लोगों का फाइनेंस आएगा. दूसरा इन्वेस्टमेंट डिसीजन कि हम लोगों को फाइनेंस एक्यूमुलेट करने के बाद ये फाइनेंस हम लोग कहां पर इन्वेस्ट करेंगे, दैट इज आवर इन्वेस्टमेंट डिसीजन. एंड द लास्ट कि इन्वेस्टमेंट के बाद हम लोगों को जो पैसा आया वो हम लोग कहां पर री इन्वेस्ट कर रहे हैं, डिविडेंड दे रहे हैं या फिर प्रॉफिट को रिटेन कर रहे हैं, दैट इज डिविडेंड डिसीजन. सो आवर करेक्ट आंसर विल बी मार्केटिंग डिसीजन विच इज नॉट ए financial decision or not the function of finance. Move to the next question. Finance required for day-to-day business activities is called দৈনন্দিন ব্যবসায়িক কার্য চলাবলৈ প্রয়োজনীয় বিত্তক আমি কি বলি কওঁ? Option A, fixed capital. Option B, working capital. C, venture capital. D, share capital. स्थायी पूंजी, चलित पूंजी, उद्योग पूंजी, शेयर पूंजी. So our correct option will be option number B. Option number B will be our correct answer. चलित पूंजी बा वर्किंग कैपिटल. ओके, जो हम लोगों का डे टू डे एक्टिविटी आमार डे टू डे एक्टिविटीज और बिजनेसर कारणे जी बिजनेस एक्टिविटीज कारणे जी पूंजी जो दरकार হয় हेतुक आमी চলিত পুঁজি বা ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল বুলি কওঁ আৰু আমি ফিক্সড এসেট কিনিবলৈ যে পুঁজি ব্যৱহাৰ কৰো সেইটো পুঁজিক আমি ফিক্সড ক্যাপিটাল বুলি কওঁ या নহয় স্থায়ী পুঁজি বুলিও কৈ থাকো. Next, which component of the financial system
Which component of the financial system act as an intermediary between savers and investors? अभी financial components क्या होता है जो फाइनेंशियल सिस्टम बनाता है, राइट? तो हम लोगों का नंबर 1 में वी आर गिवन विद फाइनेंशियल सिस्टम, एक टॉपिक है फाइनेंशियल सिस्टम जो कि कुछ कंपोनेंट से बनता है. व्हाट आर दे? फाइनेंशियल वो इंस्टीट्यूशन है, फाइनेंशियल मार्केट है, फाइनेंशियल एसेट्स है. ओके, सो दे ऑल टुगेदर बिल्ड अ फाइनेंशियल सिस्टम. सो हम लोगों को पूछा गया, और फाइनेंशियल सर्विसेज भी होता है, तो हम लोगों को पूछा गया कि कौन सा सिस्टम का वो कौन सा पार्ट है जो सेवर्स और इन्वेस्टर्स के बीच में इंटरमीडिएरी का काम करता है. সঞ্চয়কারী আৰু বিনিয়োগকারীর মাজত মধ্যস্থতা কৰা বিত্তীয় ব্যৱস্থাৰ উপাদান কোনটো? অপশন ए फाइनेंशियल मार्केट, बी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, सी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, डी फाइनेंशियल सर्विसेज. सो हम लोगों का वो जो कंपोनेंट सेवर्स और इन्वेस्टर्स के बीच में एक लिंक क्रिएट करता है वो है हम लोगों का फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. सो ऑप्शन नंबर बी वित्तीय प्रतिष्ठान विल बी आवर करेक्ट आंसर. ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट? फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? जो फाइनेंशियल मार्केट में हम लोग बेच के पैसा इकट्ठा करते हैं, वो दैट कैन बी गवर्नमेंट और एनी कंपनीज जो अपने फंड को रेज करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट या फिर जो बोल सकते हैं सिक्योरिटी इशू करते हैं मार्केट में, फाइनेंशियल मार्केट में, दैट इज नोन एज फाइनेंशियल एसेट्स और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स. सो यहाँ पर बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट. कौन सा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है? तो आरबीआई इज ए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, कमर्शियल बैंक अगेन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, स्टॉक एक्सचेंज अगेन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. सो आवर करेक्ट ऑप्शन विल बी डिवेंचर. डिवेंचर एक क्या है हम लोगों का? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर एंड इट इज अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट. तলৰ কোনটো বিত্তীয় উপকরণ? रिजर्व बैंक, वाणिज्यिक बैंक, डिवेंचर और स्टॉक एक्सचेंज. सो ऑप्शन नंबर सी आवर करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, द फाइनेंशियल सिस्टम हेल्प्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट बाय. अभी बोला गया कि जो फाइनेंशियल सिस्टम है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कैसा हेल्प करता है. देखो फाइनेंशियल सिस्टम जो है वो इकोनॉमी का डेवलपमेंट में फुल फ्लेजेडली काम करता है. अगर इसको एक समझ लो कि ये इलेक्ट्रिक सर्किट का जैसा है, ठीक है, छोटा कंपोनेंट मिला के पूरा एक इलेक्ट्रिक सर्किट बनाता है. जैसे कि एक इलेक्ट्रिक सर्किट का अगर एक कंपोनेंट को हटा दिया जाए तो दे विल नॉट रन प्रॉपर्ली. वैसे ही इस कंपोनेंट का जितना भी सिस्टम का जितना भी छोटा कंपोनेंट है उसमें से कोई एक को अगर हटा दिया सो दैट सिस्टम विल नॉट वर्क ओवरऑल. ओके, सो ये सिस्टम जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी का जो सर्किट है पूरा इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करता है पूरे घर पे, वैसे ही इलेक्ट्रिक सर्किट को अगर हम लोग फाइनेंशियल सिस्टम पकड़ ले और पूरा घर को हम लोग इकोनॉमी पकड़ ले तो एक कंपोनेंट को अगर हटा दिया तो कैसा होगा? अच्छा काम नहीं करेगा पूरा घर का जो इलेक्ट्रिक सप्लाई है. वैसे ही अगर इकोनॉमी में भी फाइनेंशियल सिस्टम अच्छे तरीके से काम नहीं करेगा तो इकोनॉमी भी अल्टीमेटली स्मूथ होके रन नहीं कर पाएगा. सो इसीलिए कैसे काम करता है वो पूछा. इंक्रीजिंग इन्फ्लेशन, नो. How it will increase inflation, and if it is increasing inflation then how it will be a good sign. Okay, mobilizing savings को mobilize करना मतलब हम लोग जो घर पे पैसा रख देते हैं ना, पैसा घर पे रख के क्या ही हो जाएगा, मतलब हम लोग ने रखा तो हमारे पास बहुत ज्यादा पैसा हो जाएगा, पर ओवर द टाइम दैट विल लूज द वैल्यू बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन. वही पैसे को अगर हम लोग फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में यूज करते हैं, फाइनेंशियल एसेट्स में यूज करते हैं, दे विल गिव द रिटर्न मोर देन द इन्फ्लेशन, देन आवर वैल्यू ऑफ द मनी विल इंक्रीज. घर पे रखा हुआ पैसा विल नॉट गोइंग टू वर्क फॉर यू, बट if you earn money from money then only you have a good financial habits. Okay, according to my knowledge, हर एक को, not only from the students or the people who are from commerce background, each and everyone should have financial knowledge. Okay, पर्सनल फाइनेंस को कैसे मैनेज किया जाता है उसका नॉलेज सबके पास होना चाहिए. सब सेविंग्स को मोबिलाइज नहीं कर पाए ना तो अल्टीमेटली क्या होगा, हम लोगों का जो मनी है ओवर द टाइम डिवैल्यूड हो जाएगा. तो फाइनेंशियल सिस्टम भी हम लोगों का वही काम करता है कि हम लोगों का जो सेविंग्स है उसको मोबिलाइज करके पैसे से पैसा बनाता है. ठीक है, वित्तीय व्यवस्थाएं অর্থনৈতিক উন্নয়নত সহায় করে কেনেকে মুদ্রাস্ফীতি বৃদ্ধি করি. নো, দিস ইজ আ নেগেটিভ স্টেটমেন্ট, সো উই হ্যাভ টু এলিমিনেট ইট. উৎপাদন হ্রাস করি, এগেইন নেগেটিভ. জনসংখ্যা বৃদ্ধি করি, এগেইন নেগেটিভ. সো আওয়ার পজিটিভ সেন্টেন্স ইজ সঞ্চয় সংগ্রহ করি. ওকে, সো आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज A bank is an institution which, बैंक का फंक्शंस क्या होता है वही पूछा क्वेश्चन में. मैन्युफैक्चर्स गुड्स,
Obviously not. Accept deposit and lend money. C. Issue shares. D. Collect taxes. So जो बैंक रहता है ना, बैंक का प्राइमरी फंक्शन ही रहता है टू कलेक्ट डिपॉजिट एंड lend money or lend credit to general public or governments or companies. Okay, so this is the primary function of bank. So option number B is the correct answer. Bank বলিলে বুঝায় সামগ্ৰী উৎপাদন কৰা প্ৰতিষ্ঠান, জমা গ্ৰহণ আৰু ঋণ দিয়া প্ৰতিষ্ঠান, yes. Share issue কৰা প্ৰতিষ্ঠান, no. কৰ সংগ্ৰহ কৰা প্ৰতিষ্ঠান, obviously not. Next question. Which bank known as the bankers bank? बैंकर बैंक का कुआ है, बैंक का भी बैंक किसको बोला जाता है? सेंट्रल बैंक को, दैट इज द RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन. प्राइमरी फंक्शन ऑफ ए कमर्शियल बैंक इज, मैंने कुछ ही देर पहले बोला कि एक बैंक का प्राइमरी फंक्शन ही होता है डिपॉजिट को एक्सेप्ट करना और क्रेडिट को ग्रांट करना. ओके, सो देयर आर 5 प्राइमरी फंक्शन ऑफ ए बैंक. याद रखना, ये डायरेक्ट क्वेश्चन में भी पूछा जाता है कि व्हाट आर द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ए बैंक. पहला, एक्सेप्ट डिपॉजिट. दूसरा, making loans and advances. तीसरा, investment in government securities. गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना भी उन लोगों का प्राइमरी काम है. नेक्स्ट, which is most important, credit creation. क्रेडिट क्रिएशन. अभी इन सब कंसेप्ट के बारे में अगर तुम लोगों को डिटेल में वीडियो चाहिए, लाइक वन शॉट वीडियो, देन डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन. ओके, सो द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ए कमर्शियल बैंक विल बी एक्सेप्टिंग डिपॉजिट. বাণিজ্যিক ব্যাংকৰ মুখ্য কাৰ্য কোনটো? জমা গ্ৰহণ কৰা. মুদ্ৰা জাৰি কৰা. মুদ্ৰা কোনে জাৰি কৰে? অবভিয়াসলি সেন্ট্রাল ব্যাংক, RBI, রাইট. কৰ সংগ্ৰহ কৰা, বেংক নিয়ন্ত্ৰণ কৰা. বেংক কোনে নিয়ন্ত্ৰণ কৰে? বাকি বিলাক বেংক যিবিলাক আছে কোনে নিয়ন্ত্ৰণ কৰে? RBI, সেন্ট্রাল ব্যাংক, রাইট, কেন্দ্ৰীয় বেংক. নেক্সট কোয়েশ্চন. Which of the following is a secondary function of a commercial bank? So see, if we make a chart कि function of a commercial bank जो कि पूछा जाता है, वो फर्स्ट रहता है प्राइमरी, जो कि मैंने कुछ ही देर पहले डिस्कस किया. दूसरा रहता है सेकेंडरी और तीसरा रहता है मॉडर्न फंक्शन. अभी सेकेंडरी में भी 2 तरीके का फंक्शन रहता है. एक इज एजेंसी फंक्शन और दूसरा है जनरल यूटिलिटी फंक्शन. ठीक है, सो इनमें से पूछा कि कौन सा सेकेंडरी फंक्शन है. एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, इट कम्स अंडर प्राइमरी फंक्शन. लेंडिंग मनी अगेन कम अंडर प्राइमरी फंक्शन. एजेंसी सर्विसेज, क्रेडिट क्रिएशन भी उनका प्राइमरी फंक्शन ही होता है. ओके, जमा ग्रहण, ऋण प्रदान और ऋण सृष्टि, दे ऑल आर बैंकर मुख्य कार्य. ইয়াত আমাক সুধিছে বেংকৰ দ্বিতীয়িক কাৰ্য কোনটো, দ্যাট ইজ এজেন্সি সেৱা. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. रीजनल रूरल बैंक्स, RRB से क्वेश्चन है कि रीजनल रूरल बैंक्स मेनली प्रोवाइडेड क्रेडिट टू, जो हम लोगों का RRBs रहता है ना, रीजनल रूरल बैंक. एक होमवर्क क्वेश्चन तुम लोगों के लिए रहेगा कि ये जो RRB आया ना, RRB बैंक्स, ये किस एक्ट के तहत आया, विच एक्ट, एंड जो फर्स्ट RRB है इन इंडिया, फर्स्ट RRB कब सेटअप हुआ. ये 2 तुम लोगों का होमवर्क क्वेश्चन रहेगा. ठीक है, ओके. सो रीजनल रूरल बैंक्स, नाम में ही छुपा है रूरल बैंक्स. सो दे मोस्टली
concentrated in rural areas and works for the rural development. Okay, so कौन सा होगा? अर्बन ट्रेडर्स नहीं होगा, लार्ज इंडस्ट्रीज भी नहीं होगा, फॉरेन कंपनीज भी नहीं होगा. ऑप्शन नंबर सी विल बी आवर करेक्ट आंसर. বৃহৎ উদ্যোগলৈ ঋণ প্ৰদান কৰা নহয়, নগৰীয়া ব্যৱসায়ীলৈ ন, বিদেশী কোম্পানীলৈ ন. The answer is গ্ৰাম্য আৰু কৃষি খণ্ডলৈ. Okay, next question. Which bank mainly deals in foreign exchange? फॉरेन एक्सचेंज में कौन सा बैंक डील करता है? কোনটো ব্যাংক মূলত বৈদেশিক মুদ্রার হইতে লেনদেন করে? কেন্দ্রীয় ব্যাংক অবভিয়াসলি করে, কিন্তু কেন্দ্রীয় ব্যাংকৰ মুখ্য কাৰ্যত এটো নপৰে. ঠিক আছে, মানে আমাৰ যেটো ফৰেন এক্সচেঞ্জ আছে বা ফৰেন এক্সপোর্ট ইম্পোর্ট কামটো আছে, হেতু কাম দেখিবলৈ আমাৰ যেটো গভর্নমেন্ট এটা এক্সট্রা স্পেশালাইজড बैंक एस्टैब्लिश কৰি দিছে. এটোৰ নাম আমাৰ एक्सचेंज बैंक. और जो इंडिया का है उसका नाम हम लोगों को पता है एक्सिम बैंक. ओके, एक्सचेंज बैंक. ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट एंड एप्रोप्रिएट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट, डेवलपमेंट बैंक्स जो है वो कौन सा टाइप का फंड प्रोवाइड करता है? ठीक है, शॉर्ट टर्म लोन्स, मीडियम एंड लॉन्ग टर्म, पर्सनल लोन्स, डी ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी. सो आवर करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी, मध्यम और दीर्घम्यादी ऋण. सो डेवलपमेंट बैंकर की एग्जांपल हबो पारे? IDBI, IFCI, which is the first development bank and established in 1948. ठीक है, 1948 और हमारा फर्स्ट डेवलपमेंट बैंक जो था वो एस्टेब्लिश हुआ था. IDBI, IFCI, the first development bank, and it was established in 1948. Okay. Next question. We have come to the last part of this video. The last question is, which of the following banks promotes export and imports of a country? I have told earlier कि हम लोगों का जो गवर्नमेंट है वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट को प्रमोट करने के लिए एक स्पेशलाइज्ड बैंक बना दिया, जिसको हम लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट बोल नाम से भी जानते हैं, एक्सिम बैंक बोल के भी जानते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक. ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन. So that's all for today. Okay, thank you.